اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے۔ پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کھڑا رہا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل، یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا، اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں۔ بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا۔ حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت، اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منه، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ یہی غرور ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا، فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا، راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں جائے تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے، انظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے بس۔ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے بس۔ کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا، کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا۔ اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے۔ دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اے اللہ، عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ کا، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا ہے، تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب تعالیٰ سے چیلنج کیا، رب نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے، ٹائم ہی نہیں طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی، دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا، جا بہکا لے۔ کتنوں کو بہکاتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا۔ وہ کون سے بندے؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا، کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے۔ وہ کون ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین،
ये वो बंदे, हाँ मौला तेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन है? वो बंदों की जमात को मुखलिसीन की जमात कहा जाता है कि वो अगर इबादत करते हैं तो ना इधर देखते ना उधर देखते हैं, वो खालिस तेरी रजा के लिए करते हैं। तो जो लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करते हैं, यकीन के साथ मैं कहता हूं उन पर शैतान का दाव भी नहीं चलेगा। शैतान उन लोगों को नहीं गुमराह करेगा। मुखलिसीन की जमात, मुखलिसीन कौन है मेरे अजीजों? दिखावे के लिए करने वाले मुखलिसीन नहीं, अपने रब की रजा के लिए। यहाँ पर एक रिवायत मिलती है कयामत के दिन, कयामत के दिन जन्नतियों का जब इंसाफ हो जाएगा ना, पूरे जन्नती एक तरफ होंगे, उन जन्नतियों में भी 3 कैटेगरी है। जन्नतियों में भी 3 जमातें। एक जमात अल्लाह ने उनसे फरमाया क्या है बंदो, तुम्हारी बख्शिश हो गई, तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना मिला, तुम जन्नत जा रहे हो। ये बताओ तुम जन्नती अमल क्यों करते थे दुनिया में? तुम नेक काम क्यों करते थे? आज जन्नत तुम्हारे लिए हो गई ना, पास हो गए। पास होने के बाद पूछा जा रहा है, तो वो जमात कहती है मौला हमें तेरी दोज़ख से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, उसके होलनाक अज़ाबात, और तेरी दोज़ख से डर करके हम नेक काम करते थे। अल्लाह फरमाता है ठीक है मैं तुमसे राज़ी हूं, तुम जन्नत में जाओ। दूसरी जमात, उनसे पूछा जाए तुम क्यों करते थे? ये सेकंड कैटेगरी है जन्नतियों की। तुम क्यों नेक काम करते थे? तुम भी पास हो गए। वो कहेंगे मौला कुरान में और हदीस में तेरे रसूल से हमने जन्नत की इतनी नियामतों का जिक्र सुना था, वहाँ के महल्लात, वहाँ की खुशबुएं, वहाँ की हूरें, वहाँ के गिलमान, तो शौक था कि जन्नत में जाएं, इसलिए नेक काम करते थे। तेरी जन्नत की ख्वाहिश ने हमसे नेक काम करवाए। रब ताला फरमाता है जाओ तुमसे राजी और तुम्हारे लिए जन्नत है, चले जाओ। तीसरी एक जमात होगी जन्नतियों की, ये लास्ट कैटेगरी। उनसे पूछा जाए मियां आप भी पास हो गए, जन्नत में जा रहे हो नेकियों की वजह से, तुम क्यों नेकियां करते थे? वो कहेंगे कि मौला हम न जन्नत के लिए करते थे न दोज़ख के लिए, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए करते। तू राजी हो जा, बस हमारा मकसद इतना था। तो रब ताला फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया और जन्नत में जाओ। वो जमात खड़ी हो जाएगी, नहीं 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 जन्नत में नहीं जाना है। अगर जन्नत में जाएंगे तो फिर बदला हो जाएगा, मुआवजे के तौर पर हो जाएगा। फिर हमको अंदर जाने के बाद दूसरे लोग ताना मारेंगे तुम भी जन्नत के लिए करते थे, वहां बोले कुछ और हो, हम नहीं जाएंगे जन्नत। रब ताला फिर दोबारा फरमाएगा क्या है मोमिनो मैं तुम सबसे राजी हूं, तुम मेरी रजा के लिए कर रहे थे, मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। कहेंगे मौला नहीं जन्नत में जाएंगे तो फिर ये मसला आ जाएगा कि तुम जन्नत के लिए किया करते थे, हम तो तेरी रजा के लिए करते थे। यहाँ तक कि रिवायत में फरमाया गया फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको बेड़ियां पहना और खींच के जन्नत में ले जाओ। ये मुखलिसीन की जमात थी, ये लालच में इबादत नहीं किए और न ही डर करके किए, ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए। और इसी जमात के बारे में शैतान भी कहता है इन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा, इन पर मेरा हरबा नहीं चल सकेगा। इसलिए मैं मोमिनों से गुजारिश ये करता हूँ कि आमाल में इखलास पैदा हो, इखलास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ना किसी को डर कर, न किसी के लिए इबादतें नहीं, अल्लाह के लिए। तुम अपनी आखिरत को सोचो। मैं एक बुजुर्ग के मुतालिक पढ़ा था 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में नमाज अदा की जमात के साथ, एक नमाज भी नहीं छूटी, तकबीर ओला भी नहीं छूटी 30 साल तक। तवज्जो चाहता हूं, 30 साल तक एक नमाज में एक जमात नहीं छूटी और पहली तकबीर भी नहीं छूटी, पहली सफ में खड़े रहते थे। 30 साल के बाद एक दिन मगरिब में आए तो एक रकात हो गई। 30 साल के बाद ऐसा मौका आया, पीछे रह गए। तो फिर जब आए देखा कि सफें तो लग गई हैं, पीछे
पीछे जगह मिल रही थी, तो उन्होंने शर्म के मारे, डर के मारे, सब लोग क्या कहेंगे अभी 30 साल से जिसकी जगह पक्की है आज तो है नहीं, छूट गया पीछे, तो पीछे से ही घर चले गए। घर में जाकर नमाज पढ़ी। ईशा में इस डर से नहीं आए कि सब लोग सवाल करेंगे मगरिब में कहाँ थे। तो उस जमाने में बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछ लिया कि फलां साहब जो रहते थे पहली सफ में, जिनका रिकॉर्ड था 30 साल का, कहा कि हुजूर पता नहीं मगरिब में भी नहीं आए, ईशा में भी नहीं आए। कहा कि चलो देख लेते, कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कुछ हुआ नहीं तकलीफ। गए तो घर में बैठे हुए थे, पूछा क्या बात है, मगरिब में भी नहीं, ईशा में भी नहीं। कहा मगरिब में आया था लेकिन एक रकात हो गई, मैं शर्म के मारे पहली सफ में नहीं आया, पहली सफ में जगह नहीं मिल रही थी, शर्म के मारे मैं पीछे नहीं खड़ा हुआ कि लोग क्या कहेंगे, मैं वापस घर में आकर नमाज पढ़ी। उस बुजुर्ग ने उनसे कहा जो 30 साल की इबादत कर चुके थे, कहा कि बंदे जा पिछले 30 साल की नमाजों को फिर से रिपीट कर ले, दोहरा ले, इसलिए कि जो तूने नमाजें पढ़ी वो सिर्फ इसी नीयत से पढ़ी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुझे इस बात का ख्याल नहीं है कि तू इबादत अल्लाह के लिए करता है, जा पिछले 30 साल की नमाजें याद कर ले, फिर से पलटा ले। अज़ीज़ान गिरामी, इखलास एक बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को अता करता है। बात मैं यहाँ पर समेटता हूँ कि इब्लीस लईन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, गुरूर और घमंड में अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज करके निकला, उसे अल्लाह ने टाइम दिया, वक्त दिया क़यामत तक का, और वो बहकाता घूम रहा है अभी भी। हाँ, बस रमज़ान में कैद हुआ, रमज़ान में शयातीन को कैद किया गया, यह हदीस पाक से साबित है। अभी तो है नहीं, हमारी महफिल में भी नहीं है और अभी रमज़ान में कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी रोज़ा छोड़ते हैं। ये कौन से शैतान हैं? नमाज में नहीं आते, फिर ये कौन है? इनको कौन सुलाता है? इनको कौन? शैतान का कोई खलीफा है? शैतान किसी को अपनी ड्यूटी दे करके गया है? यहाँ पर नफ्से अम्मारा है, वो हर एक के अंदर है। इंशाअल्लाह फिर आगे कभी मैं अर्ज करूंगा, वो हर इंसान के पास है। जिस नफ्स ने शैतान को भी गुमराह किया था, वो नफ्स तो हमारे पास है। नफ्स एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इसी से लड़ने को मेरे आका ने जिहाद अकबर कहा। जो अपने नफ्स के खिलाफ लड़ाई करेगा वो जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश हुई और आपको वहाँ से जन्नत में रखा गया। अब यहाँ पर कुछ बातें मुझे अर्ज करनी है, वो यही है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सारी चीज़ों के नाम बताए गए और सब कुछ इल्म दिया गया और फिर जन्नत में रखा गया। जन्नत कैसी है? वहाँ किसी चीज़ की कमी है? कोई चीज़ की कमी नहीं, सारी नेमतें हैं, लेकिन उसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को कुछ बेकरारी थी। क्यों? इसलिए कि इंसान जो है तन्हा नहीं रहता, इंसान को कोई दूसरा इंसान चाहिए। उन्स से बना है इंसान, उन्स कहते हैं मोहब्बत को, इसके फितरत में है ये खिंचाव, दूसरे के साथ इसका खिंचाव है, लगाव है, दोस्त बनाता ही है, अकेला नहीं रहेगा इंसान। तो आदम अलैहिस्सलाम को जो ये बेकरारी थी वो तन्हा होने की। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बाईं पसली से कुछ हिस्सा निकाला और उससे एक औरत को बनाया गया, वो हजरत हव्वा थी। हाँ, इतनी बात मैं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो किस जगह हुई अल्लाह बेहतर जाने, कोई तो जगह होगी, लेकिन औरत की पैदाइश तो जन्नत के अंदर हुई। कहाँ हुई है? जन्नत के अंदर हुई है। हाँ, जन्नत में पैदा हुई है औरत, ये उसका मकाम है और ये जन्नती चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो खूबसूरती रखी है औरत के अंदर, वो जन्नत की कशिश है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देखते हैं, आपको पता है हजरत हव्वा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से सबसे खूबसूरत थी।
आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे। रब ताला का हुक्म हुआ, आदम तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम उसका महर अदा करो, महर अदा करो। महर देना ये जन्नती कानून है, आज भी हमारे निकाह में महर रखा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला मैं यहाँ किस चीज का मालिक हूँ, क्या चीज महर में दूँ? रब तबारक व तआला ने फरमाया, आदम तुम्हारी औलाद में आखिर जमाने में मेरा एक महबूब नबी पैदा हो, जिसको आसमानों में अहमद, जमीनों में मोहम्मद कहा जाएगा। आदम तुम उस पर 20 बार दुरूद भेजो, ये हवा का महर हो जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा है। आप अंदाजा करो, हमारी माँ का महर दुरूद पाक है। हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई तो दुरूद के सदक़े में हलाल, और जिसको दुरूद से चिढ़ है उसे सोचना चाहिए कि हलाल होने का तरीका आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा दुरूद रखा गया। दुरूद के मुनकिर तू कहां जाएगा, क्या अपने माँ बाप के बारे में शक करेगा? आदम अलैहिस्सलाम उसके बाद हजरत बीबी हव्वा को छूते हैं, दोनों मजे से रह रहे थे। कुरान में अल्लाह फरमाता, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन्हा हैतु शि'तुमा। रब फरमाता है तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहे खाते रहो, जहां से मन करे खाओ। जन्नत में घूमते रहो, फिरते रहो, सारी चीजें तुम्हारे लिए अब हलाल। लेकिन रब ने फरमाया था, वला तक़रबा हादिही शजरा, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना। अल्लाह की तरफ से मना था, वो दरख्त के करीब जाने की मुमानियत आई थी। तो हुआ क्या, इब्लीस लईन जो बारगाह से मरदूद हो गया था, अब उसकी ड्यूटी हो गई थी कि आदम अलैहिस्सलाम को बहकाएं या फिर उनकी ज़ुर्रियत के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें करते रहे, उसकी ड्यूटी हो गई थी। उस वक्त तक वो फरिश्तों में भी जाता आता था, जन्नत के दरवाजे तक भी पहुंचता था। रिवायात ये बताती हैं कि एक दिन जन्नत के करीब वो गया, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को बुलाया, कहा कि तुम्हें पता है उस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या बात है? कहा उस दरख्त में फल है, अगर तुम खा लोगे ना, इल्ला अन तकूना मलकैन या तकूना मिनल खालिदीन, तुम या तो फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा जन्नती बन जाओगे। हाँ, अगर खा लिए तो हमेशा का हो जाएगा, पक्के हो जाओगे। इसलिए तुम्हें रोका गया है, खाने से रोका गया है कि तुम कंटिन्यू ना हो जाओ, यहाँ हमेशा के ना हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में नहीं आए, लेकिन अंदर आने के बाद हजरत हव्वा बार बार कहने लगी आदम अलैहिस्सलाम कि एक बार फल खा के तो देखते हैं, खा करके तो देखते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मना किया, रब तबारक व तआला ने करीब जाने से मना किया है, वला तक़रबा हादिही शजरा। अब यहाँ पर शैतान ने एक लॉजिक सिखाई, मंतिक। हाँ, करीब जाने से मना किया ना, दरख्त का फल खाने से थोड़ी ना मना किया। तो हजरत बीबी हव्वा ने फल तोड़ करके आदम अलैहिस्सलाम को भी पेश किया, खुद भी खाई। जैसे ही इन दोनों ने खाए, कुरान में अल्लाह फरमाता है दोनों के कपड़े उतर गए, लिबास उतार लिया गया, पूरा का पूरा लिबास उतार लिया गया। जन्नत के कुछ दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपना जिस्म छुपाया। फिर फौरन हुक्म आया अल्लाह का, क़ाल अहबितू, उतर जाओ तुम सब के सब, तुम सब उतर जाओ जन्नत से, जमीन पर जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से रोका था तुमने वो खा लिया। आदम अलैहिस्सलाम को भी उतारा गया, बीबी हव्वा को भी उतारा गया। जन्नत में और जिन्होंने इनका ताउन किया था सबको उतारा गया, जमीन पर भेज दिया गया। और फिर अलग अलग आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप पहाड़ पर जो श्रीलंका में है, हजरत हव्वा को जिद्दा में सऊदी अरब। इतना लंबा फासला है और पूरी भरी दुनिया में दो ही लोग हैं और एक उधर एक उधर। रब तबारक व तआला ने उतारा और फिर ये फरमाया एक मुद्दत तक तुमको जमीन में ठहरना है,
और फिर मेरी तरफ लौट करके आना। आदम अलैहिस्सलाम इस बात पर रोते रहे, बहुत रोए, तकरीबन 350 साल में। सबसे ज्यादा रोने वालों में आदम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज किया कि जब मेरी आंख खुली थी, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली गई, आंख खुली थी, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की नजर जिस चीज पे पड़ी थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ एक और नाम रखा था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया कि मौला, जिसका नाम तू अपने नाम के साथ आसमानों में रखा, उसके तुफैल मेरी तौबा कबूल फरमा। फौरन रब तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ आदम की तौबा कबूल हुई, इसलिए कि महबूब का वसीला लिया गया। हाँ, इसीलिए हमारे इमाम बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये इतना ही नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें क्या खबर, क़यामत के दिन के बारे में भी आला हज़रत फरमाते हैं, खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं न बनी। क़यामत के दिन ये कौम कहाँ जाएगी? सारे नबियों के पास जाएगी। सब क्या कहेंगे? मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हाँ, हुजूर फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूँ। इसको आला हज़रत फरमाते हैं, खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क पीरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। उसके बाद आपको हुक्म हुआ हज पे जाने का। आप हज के लिए आए। काबा उस वक्त मौजूद था, काबा उस वक्त मौजूद था, फरिश्तों का तामीर किया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम सफ़र करके गए हज के लिए। यहाँ से एक बात मैं अर्ज करता हूँ, दुनिया का पहला हज हिंदुस्तान की सरजमीन से है। आदम अलैहिस्सलाम इसी ज़मीन से गए। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि ये हिंदुस्तान हमारे बाप की ज़मीन है। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम बाप है कि नहीं है? हमारे बाप की ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बाप की ज़मीन पर कायम। हाँ, किसी के बाप की नहीं। और फख्र से रहो, खुशी से रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर तुम्हें करार दिया। आदम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो अरफात के मैदान में हज़रत हव्वा से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद ज़िंदगी की इब्तिदा हुई, औलाद शुरू हुई आदम अलैहिस्सलाम की। फिर नस्ल इंसानी का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। और उसी नस्ल इंसानी की बरकत है कि हम और आप ज़मीन पर आज मौजूद हैं, उसी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। एक और बात ख़ास तौर पर अर्ज़ करना है, वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से उतारे गए थे? मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, कहाँ से उतारे गए थे? जन्नत से उतारे गए, जन्नत से उतारे गए। और जहाँ से आए हैं वहीं पर जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया इंसान को कि तेरा असली वतन जन्नत है। तेरा असली वतन क्या है? जन्नत है। बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होकर के दुनिया में आता है तो रोता आता है ना, देखा है ना आपने, रोते हुए आता है। क्यों रोते हुए आता है? बुजुर्गों ने फरमाया, खुद मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला तशरीह फरमाते थे कि बच्चा रोता हुआ इसलिए आता है कि उसका असली वतन छूट गया। कौन सा? जन्नत में थी। हमारी रूहें आने से पहले कहाँ थी? जन्नत में थी। असली वतन जब भी छूटता है तो रोता हुआ आता है। और इसीलिए शायर कहता है, शायर क्या कहता है कि याददारी के वक्त ज़ादने तो हमा खंदा बुदंद तू गिरिया। ऐ इंसान, तुझे मालूम है जब तू पैदा हुआ था सब हंस रहे थे और तू रो रहा था। माँ भी हंस रही थी, बाप भी हंस रहा था। खुशी में सब पेड़े बांट रहे थे, जलेबियाँ बांट रहे थे, हैं? सब खुश थे कि तू पैदा हो। लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तुम तो रोते हुए आए थे।
چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خنداں. شاعر کہتا اے انسان اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ. تو ہنستا ہوا جا. کون ہنستا ہوا جائے گا؟ جسے اپنے وطن پر جانے کا شوق ہو, اپنے اصلی وطن جانے کا جسے بھی شوق ہوگا, موت کے وقت اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی. اور جسے جہنم جانے کا ہوگا خاک مسکرائے گا, خاک مسکرائے گا. وہ تو ملک الموت کی شکل دیکھ کر کے لال پیلا ہو چکا ہوگا. اسی لیے جنت کی خواہش بھی رکھو کہ میرا اصلی وطن ہے, اور کام بھی وہی کرو تاکہ مرنے کے وقت لال پیلے نہ ہو, لبوں پر مسکراہٹ ہو. اسی لیے بہتوں کو مرتے وقت مسکرانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں تم چاہو گے تو مسکرا لیں گے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہنسنے کے لیے بولوں گا تو پورا پھاڑ کر کے ہنسیں گے, ہو سکتا ہے ابھی اختیار ہے, لیکن موت کے بستر پر میاں کسی کے اختیار میں نہیں. ہنسنا اس وقت تمہارے کنٹرول میں نہیں. اس وقت تو نزع کا عالم ایسا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑ کے برابر لگے. ہنس کہاں سکو گے؟ ہاں بس وہی ہنسے گا جو زندگی بھر جنت میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور مولا اسے موت سے پہلے جنت دکھا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو. بس وہی ہنسے گا, باقی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور پھر وہ واپس جنت میں ہی جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ و عیسیٰ بھی, ابراہیم و اسماعیل بھی علیہ السلام, اور خود میرے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جائیں گے. تو ہم جن کی امت ہے, ہمارے لیے یہی فرض ہے کہ ہم بھی وہیں جائیں جہاں ہمارے رسول جائیں, اور جنت کے کام شروع کرو, نیکیاں کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے مولا توبہ کی توفیق عطا فرمائے, جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.